Hello everyone, how's going everything? I hope all things are going smoothly and I believe that you have done your study with the video what we have covered before. And today we are going to complete this particular topic, ray optics. While it took much more time than that what we have expected, and it is only because we were not much prepared about the situation that we are facing right now. As we all know that after completion of first term, the day in which we were planning to start our operation for second terms, government order has came in between and we couldn't start. So we have only one way in which we can perform our activity, our learning understanding procedure. This is the online mode in which we are performing. Obviously it took time, but it is not new for us. Even I have been doing the same thing for last batch also. So I think there is no doubt that we will able to complete our syllabus with the time. And one more thing, as we know, after the COVID-19, the world of education has changed a lot. So we have, and now we have two kind of classes. One, if everything become favorable, everything is okay, we are allowed to take the offline classes. And other, if things are not favorable, we have to perform our all activity in this platform as we are doing. But I believe that whenever things become favorable and we are allowed to take the offline classes, we should not take only offline classes, we should take hybrid classes along with offline classes. And I believe that it is going to much more better compared to that in which we are performing only offline classes before COVID-19. Let me tell you how it is. Suppose we did a class of physics of 45 minutes or 90 minutes if two sessions together, in which someone must have good in the subject, will understand each and everything properly, no doubt. But someone has some problem that cannot address in the class time. Even after the class time, 5 or 10 minute interaction will not able to solve each and everything properly. Then what can do is nothing. And we are unable to do anything with that student who having some fundamental problem which cannot understand anything about the class. The problem will remains with the student and it is not going to solve. This is the main problem what we were facing from long time. Because it is true that every class have 4 or 5 set of students with different level of understanding. And we are treating all the students with the same process. But if we have hybrid classes, it means suppose we take a class of 45 or 90 minutes, and same thing if we have in live mode also in your mobile, in your computer, in both format, offline mode as well as in download mode. So when you reach the home, you can rewatch the session. Even you can watch the area where you have problem. So it will going to help you a lot. And not only that, in revision aspect, in psychology, it is believed that if you revise a topic once a day, and after a week, and once after a month, if 3 revision are done, it is sufficient to recall the things whenever exam will come easily. So I believe that
every circumstances, every situation has some fine way. We have to find that way and go with that. And believe me, you will get such thing which makes much comfortable in that procedure, in that operation. So I decided, if things become favorable, the process of doing operation in this mode will continue, and I believe that it is much more better compared to that of what we were performing in before. So I hope you all become comfortable with this mode also, as well as offline mode. And after that, let us start our today's class from there only where we have left yesterday. If you remember, yesterday we have covered the topic of optical instrument, in which we have done two type of optical instrument. One is simple microscope, another is compound microscope. Today we take some problem, some illustration based on it, and after all we will cover the next topic. And before taking the illustration, I just want to revise once. I just want to brush up your knowledge what we have done yesterday in optical instrument. In optical instrument we have done the magnifying power and two different adjustment, two different situation. The magnifying power is different, and in both situation question also are frames. So first of all, what we have done before, let us see. In last session we have done the compound microscope, in which we have two converging lens. In this way, one is called objective, another is called eyepiece. This is the first focus of objective, this is the second focus. And if you remember the situation what we have discussed, if object is placed somewhere in between f and 2f, the image formed by this objective at v distance from the lens, the distance is called v for objective. And since this lens eyepiece is adjustable, so there are two type of adjustment take place. One is relaxed eye, setting for relaxed eye, in which image formed by the eyepiece is at infinity, and magnifying power has come minus VO by UO into D by FE. And in second situation, if eyepiece is set in such a way that the image formed by objective in between focus of eyepiece and optical center, so that image is formed at D distance, from there we were observing, and final image is at D distance,
it means least distance of distinct vision. In that situation, magnifying power is, this is the setting for least distance of distinct vision. And in this situation, the magnifying power become VO by UO into 1 plus D by FE. These two terms we have done, and it is more interested that the problem or illustration is based on in both situation in the terms of what we have done before. जैसे NCERT का एक क्वेश्चन है, a person with normal near 0.25 centimeter using a compound microscope of objective of focal length 8 mm. The things we will note here also. One thing, D has been given us, that is 25 centimeter. Second thing, focal length of objective FO, this is also given to us 8 mm, or we can say 0.8 centimeter. And the focal length of eyepiece is 2.5 centimeter. And the focal length of eyepiece is 2.5 centimeter. It means we have to given focal length of eyepiece 2.5 centimeter. 5 centimeter. Bring an object at 9 millimeter. It means U for object also given that 9 millimeter, or we can say 0.9 centimeter for sharp faces. To find the distance between lenses, हमको एक चीज इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एंड ऑल्सो मैग्नीफाइंग पावर. अब देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया हमको कि कौन सा मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, लेकिन कहा क्या है कि शार्प फोकस के लिए करना है. तो या जब कभी भी कोई कंडीशन ऐसी ना दी हो कि इस सिचुएशन पे मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो ये वाली मान के चलेंगे. पहला जो हमको पूछा गया है कि इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, U फॉर आई पीस. मतलब पहला हमसे पूछ रहा है कि VO प्लस UO कितना होगा, जिसको हम लोगों ने उसी टाइम बात किया था कि इसको माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ भी कहते हैं, और इसको कैसे डिटरमिन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ VO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE, इस तरह से निकालते हैं. पहले ऑप्शन पे जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम VO निकाल ले जाएं और UE निकाल लें, और फिर इस तरह से ऐड कर दें. तो पहले तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लिखते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव के लिए हम लेंस इक्वेशन लगाते हैं. लेंस इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1 बाई VO माइनस 1 बाई UO इक्वल टू 1 बाई FO. क्योंकि UO दिया है हमको VO की जरूरत है, तो हम यहां से देखेंगे कि 1 बाई VO इक्वल टू 1 बाई FO प्लस 1 बाई UO. इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से. सारी वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो देखें 1 बाई VO हमारे पास जो आएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है, 8 है, 0.8 मिलीमीटर, प्लस U कितना दिया है, 9, और ये डिस्टेंस होती है UO. ऑब्वियसली इट विल टेक विद नेगेटिव साइन, तो माइनस 0.9. यहां से हमको VO की वैल्यू जो मिल जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 7.72, 9 8 जा 72, तो हमको मिल जाएगा कुछ 7.2 सेंटीमीटर. VO हमको मिल गया है. दूसरा काम हमको क्या निकालना चाहिए,
UE निकालना चाहिए, और UE के लिए हमको लेना पड़ेगा आईपीस। फॉर आईपीस, आईपीस के लिए हमारे पास डेटा क्या क्या है ये देखो। एक तो V इमेज कहाँ पे बन रही है ये हमको मिलेगा, दूसरा इसका फोकल लेंथ भी दिया है तो UE आसानी से वहां पे भी मिल सकता है। हम लगाएंगे क्या कि 1/V फॉर आई पीस माइनस 1/U फॉर आई पीस इक्वल टू 1/F ऑफ आई पीस। चाहिए हमको ये, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/U फॉर आई पीस इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE। VE की वैल्यू कितना होती है 25 दिया भी है, नॉर्मल नियर पॉइंट उसका 25 था। तो यहाँ से अब क्योंकि ये वाली डिस्टेंस यहाँ से मेजर करोगे ऐसे और रे ऐसे जा रही तो निगेटिव भी लेना होगा इसको, -1/25 माइनस 1/FE की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास FE की वैल्यू है वो कितनी है 2.5, ये 1/UE मिल गया। ये इक्वल टू कितना हो सकता है 25 अगर एलसीएम हो जाए तो ये लगभग ये कितना आएगा -11/25, या यहाँ से UE की वैल्यू हमको मिल जाएगी -25/11, और ये वैल्यू हमको कुछ मिलेगी -2.25। तो पहला ऑप्शन हमको सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से L की वैल्यू निकल जाएगी, यानी सेपरेशन बिटवीन लेंसेज आसानी से मिल जाएगा। वो कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ VO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE। VO है 7.2 और इसका मैग्नीट्यूड है 2.25, यानी सेपरेशन बिटवीन लेंसेज हमको मिल जाएगा 9.45 सेंटीमीटर। एक ऑप्शन हमको मिल गया। दूसरा हमसे क्या पूछा गया, दूसरा पूछा गया कि इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, और कोई सिचुएशन डिस्कस नहीं किया है, तो सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर पूछा है तो हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे। दूसरी चीज मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या होगा -VO/UO इंटू 1 + D/FE। सारी चीजें हमारे पास हैं, हमको सिर्फ वैल्यू रखनी है। VO की वैल्यू हमने निकाली है, कितना है 7.2 -7.2। UO की वैल्यू हमारे पास है 0.9। 1 + D की वैल्यू कितनी होती है 25, और FE की वैल्यू हमारे पास है 2.5। ये हमारे पास आ जाएगा 8 × 10 + 1 11 इक्वल टू 88, यानी इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा 88 होगा। तो देखा कि क्वेश्चन भी उसी टर्म पर होते हैं, जैसे जैसे हम डिफरेंट एस्पेक्ट को पढ़ते हैं उसी बिहाफ पे हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कभी मत सोचिए कि न्यूमेरिकल अलग है और थियरी अलग है। थियरी अगर कंफर्म है तो न्यूमेरिकल सब कुछ वही पूछा जाता है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह रहता है। इसको रफ करेंगे और एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, इसको रफ करेंगे। जैसे सेम कंसेप्ट पर आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। एक की फोकल लेंथ कितनी है 1.25 सेंटीमीटर है और दूसरे की फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। टू डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज डिजायर्ड टू मैग्निफिकेशन इज 30। जो उसका मैग्निफिकेशन बनाना है वो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन लेंसेज। एल ही पूछा गया है हमसे। अब यहां पर ये हमको नहीं दिया गया कि ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, आईपीस कौन सा होगा। तो हमने पहले भी बात किया कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए।
तो बेसिकली जो फोकल लेंथ कम वाली है वो किसकी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की, और जो फोकल लेंथ ज़्यादा है वो किसकी होनी चाहिए, आईपीस की होनी चाहिए। इसका जो मैग्निफिकेशन लाना है वो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अगर देखो तो मैग्निफिकेशन पावर में, मैग्नीफाइंग पावर में किसका किसका है, ये ऑब्जेक्टिव का होता है यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये वाला किसका होता है, आईपीस का होता है यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। तो जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इस इंस्ट्रूमेंट से आता है, इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस होता है, जिसको हम दो सिचुएशन में पढ़ते हैं। अब यहां पर कोई सिचुएशन कंफर्म नहीं किया है, तो यहां भी हम कौन सी जनरल केस मान के चलेंगे। हमको बेसिकली क्या चाहिए, VO प्लस UE चाहिए, जिससे हम ये दोनों के सेपरेशन निकाल ले जाएं। उसके लिए हमको कम से कम ऑब्जेक्टिव की पोजीशन, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिलनी चाहिए। हम मैग्निफिकेशन से लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि सिंस जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस होता है। आईपीस का मैग्निफिकेशन आसानी से लिखा जा सकता है अगर हमको उसकी फोकल लेंथ पता हो। कितनी होती है, 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी कॉन्स्टेंट है, 25 होता है नॉर्मल नियर पॉइंट। एफ ई अगर हमको पता है तो इसका हम मैग्निफिकेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो यहां से हम लिखेंगे क्या, m इक्वल टू, m की वैल्यू कितना लानी है, 30 इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी कितना होता है, 25। एफ ई की वैल्यू हमको दिया है 5। यहां से हमको 30 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव 5 5 या 25 इंटू 6, या हम कह सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 5। मैग्नीफाइंग पावर जो ऑब्जेक्टिव का आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। हम जानते क्या हैं, हम कहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना होता है, -VO बाई UO होता है। यानी हमारे पास -VO बाई UO की वैल्यू कितनी है, 5 है। सिंस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल टू होता है -VO बाई UO, और ये हमारे पास कितना है, 5 है। यहां से हमको VO की वैल्यू मिल जाएगी -5 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस इक्वेशन अप्लाई हो सकता है। हम लिखते हैं कि फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 1 अपॉन V ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस 1 बाई U ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 1 बाई F ऑफ ऑब्जेक्टिव। आसानी से इसको लिखा जा सकता है क्योंकि सारी चीजें हमको पता है। हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। VO की जगह पर क्या है, -5 टाइम्स ऑफ U माइनस 1 बाई UO इक्वल टू 1 बाई F की वैल्यू भी हमको पता है 1.25। 5 LCM हो जाएगा, इसको यहां सॉल्व करते हैं और हमारे पास मिलेगा -6 बाई 5 UO इक्वल टू 1 अपॉन 1.25। यहां से इसको सॉल्व किया जा सकता है, -6 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू UO, और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी -1.5 सेंटीमीटर। अगर UO की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर मिल गई है तो VO आसानी से मिल जाएगा। इसको फर्स्ट बना लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है VO इक्वल टू -5 इंटू UO की वैल्यू रख देते हैं -1.5 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर।
VO हमको मिल गया 7.5 सेंटीमीटर। एक चीज और रिक्वायर्ड है, UE रिक्वायर्ड है। अगर वो मिल गया तो हम इसकी डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि फॉर आई पीस वाला लेंस हम लेते हैं अब, और इसके लिए लिखते हैं लेंस इक्वेशन 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। चाहिए क्या, ये चाहिए। यहां से 1/UE इक्वल टू 1/FE, सॉरी 1/VE माइनस 1/FE, यानी 1/UE की जो वैल्यू हमको मिलेगी 1/VE। VE कितने पे बनेगा, इमेज बनेगा D डिस्टेंस पर, और D कितना होता है 25, 1 माइनस 25 माइनस 1/FE, FE कितना होगा 5। यहां से UE की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ माइनस 25/6 which will come minus 4.17। तो UE इक्वल टू हो गया माइनस 4.17। अब यहां से हमको इन दोनों की सेपरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, L इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ VO, और VO का मैग्नीट्यूड कितना है 7.5, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE वो कितना है 4.17। दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11.67 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम इन्हीं सब टर्म पर पूछे जाते हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोप के केस में ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो नाउ आई होप you all are able to understand how to approach to solve the problem based on the compound microscope। और इसी के साथ हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और उसके लिए हम इसको रफ करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट फॉर अवे। और इसमें दो तरह से टेलीस्कोप होते हैं। वैसे तो बहुत तरह के टेलीस्कोप होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में टू काइंड ऑफ टेलीस्कोप वी हैव टू स्टडी। वन इज सेलेस्टियल टेलीस्कोप। सेलेस्टियल टेलीस्कोप वो होता है जिससे हम कुछ सेलेस्टियल बॉडी देखते हैं, प्लैनेट या सैटेलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए। और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, को हम अर्थ के ऑब्जेक्ट को ही देखने में यूज करते हैं। क्योंकि अर्थ के ऑब्जेक्ट को हमको सीधा देखना रहता है, इसलिए उसमें एक और लेंस यूज किया जाता है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। और उसमें जो सेलेस्टियल बॉडी है उसमें कोई इशू नहीं है कि वो उल्टा है या सीधा है, क्योंकि स्फेरिकल होता है। तो एक का उसमें हम लोग को वर्किंग पढ़ना है और मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना है, बाकी का हमको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का पहले तो देखो क्या होता है। जैसे ये मान लो टेलीस्कोप है, तो जो ट्यूब के लास्ट एंड वाला पोर्शन है उसमें एक लेंस होता है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और एक लेंस जहां से उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वहां होता है, उसको आईपीस बोलते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, infinity in the sense the object is somewhere which is much more distance from the focal length of objective, so it is considered to be at infinity। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें देखो। जैसे मान लो ये हमारे पास एक टेलीस्कोप है, ये उसका ऑब्जेक्टिव, और ये
आईपीस ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो पैरेलल होंगी। इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो लाइट इंसिडेंट होगी किसी लेंस पर वो पैरेलल आती हैं। तो यहाँ पर अगर रे ऑफ लाइट मान लो ऑब्जेक्टिव पर कुछ थीटा एंगल या अल्फा एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करती हैं, ऐसी बहुत सारी रे ऑफ लाइट मान लो आती हैं। एक कंडीशन हम लेते हैं कि पैरेलल से आने वाली लाइट इस ऑब्जेक्टिव पर अल्फा एंगल पर इंसिडेंट होती है। और जब हम लोग लेंस पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जब उसका फोकल लेंथ हम बता रहे थे या फोकस बता रहे थे तो हम उसी टाइम कहे थे कि एक प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे उस प्लेन पर पैरेलल आने वाली बीम उस प्लेन पर ही कहीं पर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। किसी कन्वर्जेंस लेंस के केस में उस प्लेन को फोकल प्लेन बोलते हैं। तो ये जो लाइन, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल इस पे आ रही है, जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी और वो पॉइंट कहां पर होगा, उसी फोकल प्लेन पर होगा। तो मान लेते हैं कि फोकल प्लेन कुछ यहाँ पर है। इसको अगर देखें इस तरह से तो ये मान लो कन्वर्ज हुई यहाँ पर, ये यहाँ पर कन्वर्ज हुई, ये वो फोकल प्लेन है मान लो इसे। इसी को फोकल प्लेन हमने कहा था। तो ये इमेज बना किसका, उस ऑब्जेक्ट का जो इन्फिनिटी पर है, जो जिससे आने वाली रेज इस ऑब्जेक्टिव पर अल्फा एंगल बनाई थी। ये जो इमेज है ये इमेज इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि ये वाला जो आईपीस होता है ये एडजस्टेबल लेंस होता है। इसकी पोजीशन को हम एडजस्ट करते हैं और दो तरह का मैग्नीफाइंग पावर अचीव करते हैं। इन दो एडजस्टमेंट को हम कहते हैं, एक होता है रिलैक्स आई, जो इस रिलैक्स आई और उस सिचुएशन पर ये जो इमेज बनाएगा वो कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पर बनाएगा। और दूसरी सिचुएशन होती है कि इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज बनाएगा वो कहां पर बनाएगा, एट डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएगा। पहली सिचुएशन हम कहते हैं, क्योंकि ये फोकल, पहली सिचुएशन हम ये करते हैं कि फॉर रिलैक्स आई सेटिंग, सिचुएशन फर्स्ट फॉर रिलैक्स आई सेटिंग। रिलैक्स आई सेटिंग क्या होगी, इसको हम ऐसे सेट करेंगे कि ये जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव का ये इसके फोकस पर आ जाए, मतलब यहाँ पर क्या हो, फोकस ऑफ आई पीस हो। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी। और क्योंकि ये पैरेलल बीम है तो ऑब्वियसली जो इमेज बना होगा वो फोकल प्लेन पर बना होगा, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एफ फॉर ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। और इससे जाने वाली लाइन कुछ यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट करेगी, बाद में पैरेलल हो जाएगी और यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, जिसका इमेज इन्फिनिटी पर कहीं पर बनेगा। ये पहली सिचुएशन है कि आईपीस को इस तरह से सेट किया जाए कि आईपीस को इस तरह से सेट किया जाए कि इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट on the focus of eyepiece, so final image formed by the eyepiece is at infinity. The setting is called relax eye setting. इस कंडीशन पर जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल भी कुछ होगा, मान लेते हैं इसको बीटा। और मैग्नीफाइंग पावर हम क्या लिखते हैं कि एंगल फॉर्म
by the object या final angle formed on I और divided by angle formed by the object without using any instrument या with naked eye। तो जो इमेज एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना कर रहा है, बीटा, और अगर ये सब नहीं यूज करते तो एंगल कितना बनता, वो अल्फा बनता। माइक्रोस्कोप के केस में हमने कहा था कि अल्फा बीटा इतने छोटे एंगल होते हैं कि उसको अल्फा को tan अल्फा और बीटा को tan बीटा हम लोग लिख सकते हैं। अगर अल्फा को tan अल्फा लिखेंगे और बीटा को tan बीटा लिखेंगे तो इस सिचुएशन में tan बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मान लेते हैं h बाई एफ ई डिवाइडेड बाई tan अल्फा कितना हो जाएगा, h बाई एफ ओ, और ये हमको मिलेगा h बाई एफ ई इंटू एफ ओ बाई एच। यहां से हमको मिल जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, या हम कह सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स आई सेटिंग इज एफ ओ बाई एफ ई। और ये पर्टिकुलर मैग्नीफाइंग इक्वेशन tells us that for better magnifying power focal length of objective must be greater than focal length of eyepiece. That's why aperture or radius of curvature should be greater than compared to that of aperture or radius of curvature of eyepiece. इसीलिए ये वाला लेंस बड़ा लिया जाता है और ये छोटा लिया जाता है टेलीस्कोप के केस में। It is totally different for microscope what we have done. तो ये एक सेटिंग थी। दूसरी सेटिंग क्या पॉसिबल है, दूसरी सेटिंग ये पॉसिबल है कि इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि फाइनल इमेज जो बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने और उस सिचुएशन पे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है। उसको हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। सेटिंग फॉर least distance of distinct vision, distinct vision। सेटिंग फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसके लिए इसको नोट कर लो क्योंकि ये सारा कुछ हम क्लियर करेंगे और फिगर में भी कुछ चेंजेज होंगे, तो इसको हम क्लियर करते हैं यहां से। सेटिंग फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में क्या करेंगे, जो इमेज फॉर्म हुआ है ऑब्जेक्टिव का, आईपीस को इस तरह से सेट करेंगे कि दिस इमेज विल कम इन बिटवीन फोकस ऑफ आईपीस एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब फोकस ऑफ आईपीस कहाँ हो जाए, इसको इधर मूव करके फोकस ऑफ आईपीस यहाँ आ जाए। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस अभी फोकल लेंथ ना होके बल्कि कितना होगी, यूई डिस्टेंस होगी। और जब ये यूई डिस्टेंस होगी तो फाइनल इमेज कैसे बनेगा, इसको हम यहां पर प्रोसीड करेंगे। फाइनल इमेज कुछ यहां पर ऐसे बनेगा। ये h है तो ये h डैश है। कितनी डिस्टेंस पर बनता है ये d डिस्टेंस पर ऑब्जर्व होता है, जिसके बारे में डिटेल स्टडी हमने पिछले क्लास में किया था। मीन्स सेटिंग फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, we have to adjust the eyepiece in such a way so that the image formed by the objective is lying in between focus of eyepiece and optical center, and hence final image formed by the eyepiece is at d distance in same side of object or virtual object that has been formed by the objective. And now magnification would be, magnifying power of telescope would be again beta by alpha,
बीटा मीन्स बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, एंड टेन बीटा को हम लिख सकते हैं या तो डी बाई एच प्राइम लिख सकते हैं या एच बाई यू ई लिख सकते हैं, और टेन अल्फा तो उसी तरह से लिखेंगे क्या, एच बाई एफ ओ। तो टेन बीटा हम लिखते हैं क्या, टेन बीटा इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा एच बाई यू ई अपॉन टेन अल्फा कितना है, एच बाई एफ ई। ये हमको क्या मिलने वाला, ये हमको मिल जाएगा एच बाई यू ई इंटू एफ ई बाई एफ ई नहीं बल्कि एफ ओ इंटू एफ ओ बाई एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा टेलीस्कोप का इस कंडीशन पर वो मिल जाएगा एफ ओ बाई यू ई। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि, या दूसरा काम हमारा ये है कि यू ई की वैल्यू निकालें। यू ई के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ये आई पीस लेते हैं, फॉर आई पीस और आई पीस के लिए हम लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन अप्लाई कर दें। लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन क्या होता है, 1 बाई वी ऑफ आई पीस माइनस 1 बाई यू ऑफ आई पीस इक्वल टू 1 बाई एफ ई। चाहिए हमको ये, यहां से हमको मिलेगा 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई वी ई, और ये कुछ चीजें अप्लाई कर दें। यहां से हमको मिलेगा कि वी कितना है, डी डिस्टेंस पर है, 1 अपॉन माइनस डी, यू क्या है, ये है माइनस 1 बाई माइनस यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। यहाँ से 1 बाई यू ई की जो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, या इसको हम लिख पाएंगे डी प्लस एफ ई बाई एफ ई इंटू डी, और 1 बाई यू ई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एफ ओ, और 1 बाई यू ई की जगह पर क्या मिल जाए, लग दें डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई इंटू डी। एफ ओ बाई एफ ई कॉमन कर लेते हैं, और ये हमको मिलेगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर होगा when final image is formed at least distance of distinct vision, which जो कि मैक्सिमम होगा। तो ये टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप के केस में भी दो तरह का मैग्निफिकेशन होता है, वो सेटिंग के बिहाफ पर होता है। अब क्योंकि इस टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पर, जितना बड़ा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का होगा उतना अच्छा मैग्नीफाइंग पावर होगा। क्योंकि ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना पर बिलोंग करता है तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। कुछ लिमिटेशन में एक तो ये है कि बहुत बड़ा लेंस को हम किसी रिम के सहारे प्लेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पीछे से सपोर्ट दे नहीं सकते हैं, इसमें लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो इसको एक रिम पर फिट करना होता है, और बहुत हैवी लेंस के लिए रिम बनाना इजी टास्क नहीं है। एक तो ये लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन ये है क्योंकि ये सब कुछ बहुत हैवी हो जाएगा तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। तो इसको कहीं एक सर्टेन प्लेस पर सेट कर दिया जाए, वहीं पर देखा जाए, ये हो सकता है। तीसरी चीज ये होती है क्योंकि ये लेंस को अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना है, और अगर ऐसा बना है तो प्रिज्म के अंदर प्रॉपर्टी होती है डिस्पर्सन की, तो इसमें भी डिस्पर्सन की प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत आएगी।
उस सिचुएशन पर क्या होगा, उस सिचुएशन पर ये होगा कि वो जो इमेज बनेगा वो ब्लर बनेगा। और एक प्रॉब्लम और होती है इस टाइप के टेलीस्कोप में, उसको बोलते हैं कमेटिव एब्रेशन। कमेटिव एब्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लेंस है, एक लाइट जो एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो सीधे इस तरह से चली जाएगी। सोचो एक रे ऑफ लाइट इसके बहुत करीब से गई, ऐसे एक पॉइंट पर फोकस होगी, यहां पर इमेज बनेगा। क्योंकि ये पूरा लेंस क्या होता है, इस पर और भी रेज आती है। मान लो यहां पर एक रे ऑफ लाइट आई इसके अलोंग, अब सोचो कि एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गई, उस पे किसी तरह का डिस्पर्सन या किसी तरह का डेविएशन नहीं हुआ, दूसरी लाइट थोड़ा डेविएट हुई। अब और आगे जाएंगे तो और डेविएशन होगा, मतलब ये कुछ यहां पर अपना इमेज बना लेगी, और जाएंगे तो और आएगा। तो जो इमेज बनेगा वो कुछ कॉमेट के शेप का बनेगा, मतलब एक पॉइंट पर फोकस ना होके ये डिफरेंट पॉइंट पर फोकस करेगी जैसे जैसे रे ऑफ लाइट दूर होती जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। क्योंकि सारा कुछ डिस्कशन फोकस के लिए ये हुआ था, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ लेंस बहुत बड़ा है तो करीब ना होके दूरी बढ़ेगी, तो इमेज एक पॉइंट ना बन के बल्कि कई पॉइंट पर बनेगी और कमेट का शेप होगा। कमेट मतलब क्या होता है कि जो तारा टूटता है वो कमेट। जैसे 12th में एक प्ले पढ़ाया जाता है विलियम शेक्सपियर का, जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर में सीजर की जो वाइफ होती है कैलिफोर्निया, वो रात में एक सपना देखती है और उसका एक्सप्लेनेशन करती है। किस तरह से कि नो कमिट सीन ऑन द स्काई व्हेन बेगर इज डाई बट स्काई इज ऑल्सो ब्रेथ ऑन प्रिंसेस डेथ। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के मरने पर कोई कमिट सीन नहीं दिखता, कमिट मतलब तारा टूटना, लेकिन जब कोई प्रिंस मरता है तो आसमान का भी कलेजा फट जाता है। तो आई होप आप सबने कमिट वर्ड सुना होगा उसी टॉपिक में। तो इस तरह से जो इमेज बनता है वो कमिट शेप का बनता है, इसको कमेटिव एब्रेशन बोलते हैं। तो दो तरह के एब्रेशन हैं, दो तरह के इसमें लिमिटेशन होते हैं, त्रुटियां हैं। एक कमेटिव एब्रेशन है, एक क्रोमेटिक एब्रेशन है, मतलब डिफरेंट कलर की अलग अलग फोकस होगी तो ब्लर बनेगा। इन सब को रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरा टेलीस्कोप बनाया गया जिसको कैसीग्रेन टेलीस्कोप बोलते हैं या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो इसको यहाँ तक ही रहने देते हैं। अगले एक छोटा सा क्लास लेके उसमें इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन देख लेंगे और उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक सब लोग स्टडी कर जाना। और एक चीज और आई वॉन्ट टू ऐड हियर, वेन एवर यू वॉच द वीडियो ट्राई टू वॉच एट वन सिटिंग, because see you have the option. If you have getting bored after 20, 25 minutes, 30 minutes, just pause the video and go take some food, take some drink, or you can play with the child in your family what you have, or any other thing. I mean to say get some refreshment in between and again come and start the video and complete it. Basically I want to say that whenever you start the video, just try to complete at one sitting. It is going to help in concept building. That's why I am telling to you. So enjoy the study and we will meet in next session. Till that time, best of luck. Thank you.